উনি এবার বলবেন ভাষা আন্দোলন করুন, তারপরে উনি বলবেন মাছ মাংস আন্দোলন করুন, তারপর উনি বলবেন আমার জন্য আন্দোলন করুন। উনি এখন লড়তে চান, কেন হারার আগে উনি লড়তে চান। যে কোনো লোক, যে কোনো রাজ্য, যে কোনো মিনিস্টার নিজের সিট ছাড়তে চান না। আর আমাদের রাজ্যতে এত রকম ঘটনা হচ্ছে, না এখানে কোনো সরকারি চাকরি আছে এই মুহূর্তে তো নেই, এখানে কোনো স্টুডেন্টদের সিকিউরিটি নেই কলেজে। 3 নম্বর হচ্ছে পয়সা দিয়ে লোক আনা হয়েছে 21শে জুলাই। তারপরে এখন উনি চাইছেন যে কি ওনার মতন করে আমরা ভাববো। কেন ভাববো? আমরা দেশের নাগরিক, যখন যেটা যাকে ইচ্ছা হবে সেই সরকারকে আনবো। ওনার ভাবনায় তো দেশ চলবে না, মানুষের ভাবনায় দেশ চলবে। করবেই, ভয় দেখাবে, डर का राजनीति होगा, मार पिटाई का राजनीति होगा, शहर में राजनीति होगा, गांव से राजनीति होगा, वोट बैंक खरीदा जाएगा, धमकाया जाएगा। अगर इस बंगाल को बचाना है तो इस घर की बंगाली लड़की को नहीं जितवाना है इस बार आते हुए इलेक्शन में, क्योंकि इस बार अगर लोगों ने इनको चुन लिया तो हम लोग बंगाल की बेटियां अगले 5 साल तक बंगाल छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, बंगाल के नागरिक को इस सरकार को नहीं लाना है, क्योंकि ये अब खुद के सम्मान और चेतना की नहीं, हमारे बंगाल की गरिमा और अस्मिता का बात है। মধ্যে বাংলা বাঙালির ইস্যুকে সামনে রাখা হচ্ছে, বাংলা বাঙালির ইস্যু নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়ান্ত সরব, নাকি বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা বললেই নাকি তাদেরকে আটক করা হচ্ছে, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর সুচেতনা দে, কথা বলবো দিদির সাথে। দিদি, বিভিন্ন রাজ্যে নাকি বাংলা বললেই আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে, এমনটাই বলছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কি বলবেন? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के पास मुद्दा खत्म हो गया है, इसीलिए उनको लगता है कि कोई भी जाके বাংলা যদি কথা বলে তাহলে ওখানে নাকি তাদেরকে খুব খারাপ ভাবে বেইজ্জতি করা হচ্ছে, এটা ওনার মনে হয়। কেন এই সময় তো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে পারছে না, কেন সর্বধর্ম সব একরকম হয়ে গেছে এখন আমাদের বাংলায়। তো বাইরের রাজ্য থেকে আমি এক্ষুনি फिरलाम और वहां पे मैं हिंदी भाषी में बात कर सकती हूँ, लेकिन वहां जाके मैंने बांग्ला में बात किया। मैं अभी गई थी श्रावण के इस महीने में बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, तो वहां पे मैं बंगाली टोला में थी और वहां मैंने बांग्ला भाषा में ही बात किया। लोग हाथ पकड़कर पूछ रहे अरे আপনি কলকাতা থেকে, বাহ কলকাতা কিরম আছে, ওখানকার রসগোল্লা কিরকম, ওটা তো আমাদের রামকৃষ্ণ নেতাজির দেশ, আমাদের কতদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জায়গা, তো আরেকটু কিছু বাংলার কি হচ্ছে বলুন তো। তো वहां के लोग कभी ये नहीं बोले कि বাংলা ভাষা বলে আমাকে অ্যারেস্ট করেনি। উল্টে যখন আমি বললাম আমি অন্য রাজ্য থেকে এসেছি, আমাকে কাশী বিশ্বনাথ যাওয়ার জন্য রাস্তা বানিয়ে দিল, কেন আমি কলকাতার থেকে এসেছি, বাংলার থেকে এসেছি। তার মানে ইউপি সরকার, ইউপি পুলিশ আর নরেন্দ্র মোদী ওখানে বসে বাঙালিদের কি করে সম্মান করতে হয় সেটা দেখিয়ে দিয়েছে বারবার। এবং উনি যে বক্তব্যগুলো বলছেন লোকেদেরকে বারবার, जो वो कह रही है मास को, बिकॉज शी प्लेज विद द मास साइकोलॉजी, विद द मास इमोशन। धर्म राजनीति के बाद अभी भाषा राजनीति पे गई है और वो गलत है और सरासर लोगों को गुमराह कर रही है। इसीलिए एक चीफ मिनिस्टर का धर्म होता है कि दूसरे राज्यों को अपमान ना करने का, वो दूसरे राज्यों के सरकार को, दूसरे भाषी को अपमान करे, ये बहुत अपमानजनक बात है। ডিটেনশন ক্যাম্পে নাকি পাঠিয়ে দিচ্ছে, ওখানে গিয়ে বাংলা কথা বললে বা যারা পরিযায়ী শ্রমিক আছে তাদেরকে নাকি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। हाँ जरूर, अगर बांग्लादेशी लोग आएंगे, बांग्लादेशी लोग बांग्ला में ही बात करेंगे। रोहिंग्या आएंगे और दूसरे राज्य में जाके बांग्लादेशी का अगर उन लोग को स्टैंप मिल गया कि वो लोग बांग्लादेश में, तो डिटेंशन कैंप क्या, देश से भगा देना चाहिए, उस पर भेज देना चाहिए जहां से आए। यहाँ पे जो ममता बनर्जी का सरकार है, रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को बंगाल के थ्रू से सारा राज्य में घुसा रहे और दूसरे राज्य में जाके ये बांग्लादेशी हम लोगों का जो खाना पीना खा रहे, हमारे सरकार का, हमारे टैक्स का, ऐसा क्यों हो? इसीलिए तो सही बात किया जा रहा है, उन लोग को पकड़ के निकाल देना चाहिए। वो लोग बांग्ला के खिलाफ नहीं है, बांग्लादेशी के खिलाफ है। इसीलिए सरकार को पहले ठीक करना पड़ेगा, क्या वो बंगाली के बारे में बोल रहे कि बांग्लादेशी के बारे में बोल रहे, क्योंकि वो खुद बहुत मैनिपुलेटिवली स्पीच अपना रेडी करके बोलते कि अरे বাঙালিদেরকে বার করে দিচ্ছে, বাঙালিদের ডিটেনশন ক্যাম্পে দিচ্ছে, বাঙালিদের অপমান করছে। না, বাঙালিদের অপমান করা হচ্ছে না, বাংলাদেশীদের অপমান করতে হচ্ছে। বাঙালিদেরকে বারবার অপमान করছে না, बांग्लादेशीদের। अगेन आई रिपीट, वो बांग्लादेशियों के खिलाफ उनको बोलना चाहिए, बंगालियों के प्रति नहीं। हर सरकार, हर राज्य, अगर आज यूपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, साउथ हो, कोई भी, दिल्ली हो,
क्यों रखेंगे बांग्लादेशियों को? बांग्लादेशियों का एक ही डिसएडवांटेज है कि वो लोग बांग्ला में ही बात करते हैं, और बंगाली लोग जो है वो हर भाषा में बात कर सकते हैं। मैं खुद बंगाली होकर हिंदी में बात कर रही हूँ, इसलिए ममता बनर्जी जो बोल रही कि डिटेंशन कैंप में वो बंगाली नहीं है, बांग्लादेशी है। और हर राज्य के सरकार से मैं निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, अगर कोई बांग्लादेशी है हटाइए यहाँ से, चलिए डिटेंशन कैंप में भेजिए, निकालिए हमारे देश से, कचरा साफ करिए। अभी पाकिस्तानियों को भेज दिया ना इतना साल बाद, चलिए बांग्लादेशियों को भी हटाइए, क्योंकि ये हम लोग का देश का रोटी है, हम लोग का देश का मेहनत का पैसा है, हम लोगों तक पहुंचना चाहिए, ना कि बाहर के किसी भी राज्य के लोगों को। हाँ, अगर हिंदू शरणार्थी हो, अगर वहां पे रूल है तो लगाइए, उनको यहाँ पे शरणार्थी दीजिए, लेकिन बांग्लादेशियों को एकदम यहाँ पर कोई जगह नहीं देना चाहिए, कोई भी राज्य पे नहीं। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন কোনো জমিদারি চলবে না, এখানে কোনো জমিদারি সহ্য করব না। কে প্যারা খাবে, কে গজা খাবে, কে সিঙ্গারা খাবে, কে পোহা খাবে, সেটা আপনারা ঠিক করবেন। देखिए, ये श्रावण का महीना है, हमारे जो संस्कृति सनातन धर्म में जो कहा जाता है कि ये हमारे ऊपर है कि हम मछली खाए कि मांस खाए, लेकिन श्रावण के महीने में जो सनातनी हिंदू होते हैं वो लोग बहुत सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सभी शाकाहारी बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर उनको इच्छा है कि वो मांस मछली खाए, वो उनका है, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज है, मंदिर के पास 5 किलोमीटर में जहाँ पे भी शिव मंदिर है, जहाँ पे भी हिंदू मंदिर है, वहां पे मांस मछली नहीं खाते। ये हमारी भारत की संस्कृति है। अब उनको मानना, ये उनका बंगाल है जो सबसे अलग है, अगर उनको मानना है मानेंगे, उनका नहीं मानना है नहीं मानेंगे। मेरा धर्म बोलता है कि हम सोमवार को शिव की आराधना करें, हम मांस मछली नहीं खाए। उनका आराधना कहता है कि रोज मांस मछली खाए। ये मनुष्य के ऊपर है, लेकिन हमारा कहीं पे संविधान में नहीं लिखा है कि थोपा नहीं गया क्या कि आपको शाकाहारी बन के रहना है। अगर वो बोल रही है तो वो अपने चेतना से, अपनी इच्छा से बोल रही है। देखिए, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, लेकिन वो लोगों को प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते कि किसी ने बोला इसीलिए करना है। वो लोगों के ऊपर है, इसीलिए उनको अभी उकसाना नहीं चाहिए, क्योंकि माहौल अभी बहुत गर्म है। 9 महीना भी बाकी नहीं है आने वाले इलेक्शन का। अभी सब लोग तैयारी में है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जीत इस बार सच का होगा, क्योंकि धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म ही हमेशा जीतता है, और बहुत अधर्म बंगाल में हो चुका है। और अब अगर नहीं बदल पाए तो अब हम कभी नहीं बदल पाएंगे। अगर दिल्ली जीत सकता है तो बंगाल क्यों नहीं जीत सकता।